Nomenclature is very important topic for the point of examinations. Every year, board is giving 2 to 3 questions from this, and children are having repeatedly confusion from this topic. So children, in this video, we are going to learn the topic in a deep, and I request you to watch this video completely without skipping that one. And at the last of this video, I will tell you a trick through which you are going to name all the compounds in an easy way. Clear? So please keep your like, share and subscribe button to get more updates and new videos from this channel. And you will get different short tricks as well based on this, not only for this topic carbon and its compound, and many more chapters. So let's begin with the video. Here we are going to discuss about nomenclature of homologous series. In this video, homologous series is a general word. I have already used the word homologous in my previous video. I've gone through the definitions as well as I have given the different examples based on that one. Homologous series are what? It is a special type of series where it is differ by the which number of atoms? It is differ by 40 number of atoms, and they are differ by a CH2 group. It contains 14 atoms in it. And they are differ by one more thing. They are differ in the same functional groups. The carbon or the atoms which they are differ by 40, they are differ by the same functional group. Children, in my previous video, I have already taught you about functional groups. Once again, I am recalling before going to start this one. Your functional groups are what? Halo, alkenes, aldehyde, alcohol, ketone, carboxylic acid. As per your class, you are going to learn all these things. So here we are going to tell you about name, that means name of functional group, nomenclature, what we are going to call in IPSC, as well as their general formula. This is very important for the point of examinations. Very important, this particular word I am telling you, general formula for all. Do you get my point? Here, suppose for example, if I'll ask you what is alkene and what is the general formula of alkene, then you will be blank. Oh my god, what is general formula? No, general formula means when you are going to learn that particular formula, you can make whatever the compounds is being made from alkene with that particular formula. So this is very important for you to understand that. And last, we are going to deal with some of the examples based on this topic. Understood? So I'm going to proceed with that thing. Please continue with me. So let's start. First and the most important for you is alkenes. What is? First and most important for you is alkenes. Now if I told you alkene, children, already in my previous video I have gone through different functional group. Please name it out. What will be the other one? Please name it out so that I can check your knowledge as well, whether you are reading this or you know how much knowledge you are having. And if you have any query or any confusion regarding the previous topics of this one, you can put your doubts in comment section. Understood, no? So let's begin with this one. Alkenes. What type of nomenclature we are going to use for this one? For this short form we are using in 2 to 3 times. I have repeated the same in my previous video. When you will watch, your easily that concepts will be clear. In a short tricks way, in a paragraph, in a graph way, or you can say in a mind map way. I have already discussed the things. Now general formula for this one. We have one general formula which is very important, and that you have to note it down and put it in the bracket. CnH2n plus 2. Children, when we are going to deal with this one, basically we are dealing with your homologous series as a series which contains your carbon and hydrogen. What does it contains? It contains your carbon and hydrogen. Here C is your carbon, N is the number of carbon atom. Whether you are taking one carbon atom. In my previous video, I have already taught you about if you have one carbon atom, it will be meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, and so on till 10th. I have already discussed it. C for carbon atom, N for number of carbon atom, H for hydrogen, 2N, 2 multiplied by number of atoms as well as plus 2. This is the formula for your alkene. Understood? So let's start with this one. Till here I have. Now, after writing alkene and alkyne, I expect the examples from you. Like for example, I am going to ask with you from here. You can see, if we are going to write C, एकदम ध्यान से पूरी तरीके से आंख दिमाग सब कुछ एकदम खोल के बैठिए, फॉर्मूले के साथ जाइए. बाकी वो सारी चीजें आप याद कर लेंगे. एल्केन है,
पेज में ए नहीं है, ए नहीं यहाँ आ गया, कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, वो हम लिखने के टाइम यहाँ पे याद करेंगे। फॉर्मूला क्या है, CnH2n। C अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 + 2, 2 + 2 हो गया हमारा 4। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा CH4। और CH4 क्या होता है, कैन यू गेस? CH4 is your mass gas, this toxic gas as well as your hazardous or poisonous gas. It is called your, please leave your valuable answers. मैं चाहती हूँ कि आप सबके सब अपने ये छोटे छोटे फॉर्मूला के आंसर कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। तो ये हमारा किसका ऑप्शन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर मीथेन। व्हाट? मीथेन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक कार्बन होगा तो मिथ होता है, METH। और हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे एल्केन ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथ तो सबके लिए कॉमन है अगर एक कार्बन एटम, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया लास्ट में, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और इसको आप लिखेंगे, क्या लग गया, एन, मीथेन। समझ में आ गया? आगे बढ़े। यहां सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको जनरली समझा रही हूं। अगर आपका यहाँ 2 कार्बन हो जाएगा, C2, यहाँ 2 रखिए, हो गया, H के साथ 2 × 2 4, 4 + 2 6, यहाँ क्या हो जाएगा C2H6। अब यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों, और मेथ के बाद अगला क्या होता है, जस्ट एथ। सिंपल आप यहां पे लिखिए एथ, क्या लिखेंगे, ETH। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एल्केन ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से प्रीफिक्स क्या लगेगा, क्या सॉरी सफिक्स क्या लगेगा, ए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इथेन। ये तरीका है, यहां से आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया जा रहा है, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है फॉर्मूला। एग्जामिनेशन में बाकी आपको फॉर्मूला याद रहे ना रहे, इथेन मीथेन, आपको अगर ये याद होगा और ये याद होगा कि किस ग्रुप का है, किस फंक्शनल ग्रुप का है या किस ग्रुप का है ये, तो आप इजीली किसी भी फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला आप इसको नोट कर लीजिए, आपका अगला पॉइंट है एल्कीन। क्या है, एल्कीन्स, इसका शॉर्ट फॉर्म ENE। Okay, can you guess what is the general formula of this one? Any guess from your side? Very good. CnH2n. The general formula for this is your CnH2n. Now there is no chance for +2 and -2 or anything else. Nothing else is not required. Shall I go with? Fine. अब हम लोग फिर एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक। फिर यहाँ हम लोग एक कार्बन को रखते हैं। कितने कार्बन को रखेंगे, आप इसको अंडरलाइन करके रखिए और कोशिश करिए कि आप इसको डिस्टिंग्विश ना कर पाए। ये हमारा इथेन ग्रुप है, एन ग्रुप था, C को 1 रखो, कार्बन एक लिए, यहाँ पे कितना आएगा 2 × 1, 2 × 1 2, CH2। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, ईन। वहां पे क्या होगा CH2 का, CH4 का मीथेन था, C2H6 का इथेन था, इसका क्या बनेगा। कंफ्यूजन यहाँ ये बना रहेगा कि क्या ये मिथाइल होगा कि ये इथाइन होगा, ये आपके लिए। मुझे तो पता है ये क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये किस ग्रुप का है, ये एक अलग ग्रुप होता है जिसका नाम है एल्किल ग्रुप, उसके अंदर भी इसको कंसिडर कर सकते। आप फॉर्मूले पे रखिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे अभी जस्ट आपको मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ और आप मुझे बताइए कि क्या ये मीथीन होगा, मीथीन ENE होगा या फिर इथीन होगा। अगला फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला अगर हम लोग यहाँ 2 रख रहे हैं C2, तो यहाँ कितना होगा H2 × 2 4, C2H4। और हमें पता है कि हमारे लिए 2 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ एथ, ठीक है। आई हैव गिवन यू द आंसर, द आंसर इज इथीन। Now please find your answer for this one. Now let's go with the next part of yours, and that will be your alkynes. And the suffix or nomenclatures which we are going to use for this one is your -ine. Clear? Please note it down.
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। क्या फॉर्मूला है? CnH2n-2। देखो यहाँ पे +2 हो रहा था तो वो हमारा एल्केन ग्रुप था, -2 हो रहा तो एल्काइन ग्रुप है, कुछ भी नहीं लगा तो वो हमारा एल्कीन ग्रुप है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है बेटा, ये कंपाउंड हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस केस में मीथेन जो ऑलरेडी मास गैस था, जिसके पास 4 हाइड्रोजन था, फिर भी इसको हम लोग टॉक्सिक और मास गैस ले लिए, दम घुट सकता है अगर इसकी एक्सेस मात्रा में प्रेजेंस हो जाए कहीं पे भी। तो ये हमारा क्या होता है? There is no formula for this one. In case of ethene, your carbon numbers begins from this place when you have the 2 carbon atom. मतलब सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड यहाँ पे इनके बीच में, आपको ये पता है, आपको तुरंत आंसर करना चाहिए था कि एल्कीन्स जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो किस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं? वो हमारे डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। और यहां हमने क्या लिया एज एन एग्जांपल? 1 कार्बन लिया। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारा पता है, हमको पता है कि एल्कीन्स हमारा डबल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ तो किसी तरह का डबल बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 कार्बन है। तो इसलिए ये कंपाउंड हमारा एल्कीन में, ये फॉर्मूला अगर इस पे रखते हैं तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? आगे चले। इसलिए यहाँ देखो, दूसरे में क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, और हमेशा 2 कार्बन तो आपस में बॉन्ड बना सकते। एक बनाएगा कब? सिंगल बॉन्ड के केस में। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्कीन के केस में। एल्कीन के केस में ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर्स। आपको साइंटिफिकली रीजन समझ में आ गया क्यों हम यहां से स्टार्ट करेंगे 2 कार्बन से? ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए। आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये हमारा एल्कीन का था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एल्काइंस। इसका सफिक्स क्या यूज होता है? इसका सफिक्स यूज होता है YNE, आइन। Clear? Now let's make the formula for this one. Here you have, if you have 1 carbon atom, can you guess what it will be? 2 into 1 minus 2. That means 2 minus 2 0. तो C1H0 ऐसा पॉसिबल है? क्या ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन और 0 हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड हो ही नहीं सकता। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ही होता है वो अपने साथ क्या कंसिडर करेगा? कुछ ना कुछ अमाउंट, एटलीस्ट 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। लेकिन हमारा अगर यहाँ पे 1 रख रहे कार्बन की वैल्यू, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? 0। That's why this compound, when carbon is 1, is not going to this exist here. ठीक है? Now let's move to the next part for this one. Now if you are going to consider 2 carbon atom, C2 H2 into N, 2 into 2 4, 4 minus 2 2. So you are having the compound C2H2. हमने n की वैल्यू कितनी ली थी यहाँ पे? यहाँ पे मैंने l की वैल्यू 1 लिया था, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 लिया था, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 2 लिया, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितना लिया? 2, C2H2। और आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें वैल्यू रखना, कंपाउंड्स का नाम अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको वो सीरीज याद रखनी है, प्रीफिक्स वाली, मेथड, प्रोब्यूट, और आपको E9 पॉइंट्स के हिसाब से लगा देना है। काम खत्म। ठीक है? ये किसका, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जनरली? इसका IUPAC नेम क्या होगा? Any guess? C2. When you are having the 2 carbon, I already discussed, with 2 carbon you are having what? ETH. और इन दोनों लोग के बीच में बॉन्ड्स कौन सा है? एल्काइंस का कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड्स होता है। They are, alkynes are going to form triple bonds. So they are what? ETH, Y and E. Understood? Clear about this point? Like this you are going to frame not formula for this only alkene, alkyne and this alkane, alkene and alkyne. आप सारे फॉर्मूलेस को आप 10 तक, 10 से ज्यादा भी कार्बन के साथ बना सकते हैं। जनरली आपके लेवल तक सिर्फ 10 कार्बन तक ही दिया, डेकेन तक ही दिया, तो आप वहां तक ही कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है? जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादा IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके साथ साथ फॉर्मूलाज भी आप बना सकते हैं ज्यादा कार्बन के साथ। Shall I go with? Please recall this one and note it down. Now next is your halogen derivatives. What is halogen derivatives? यहाँ पे आप नोट करिए, halogen
डेरिवेटिव्स। इसको लिखते क्या है? हेलो एल्केन। क्या लिखते हैं? हेलो एल्केन। और हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या? इसको एक्स से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये किस ग्रुप का मेंबर है? इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग क्या, कौन सा ग्रुप बोलते हैं? क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी, बहुत सारे बुक्स में ये नहीं दिया हुआ है, अगर दिया नहीं हुआ तो आप यहाँ से इसको नोट करने की कोशिश करें। CnH2n + 1 x। जितना भी आपको n नीचे लग रहा है वो सब के सब उसका बेस वैल्यू है। आपने एक्सपोनेंट चैप्टर ऑलरेडी मैथमेटिक्स में क्लास 6-7 में पढ़ा है। ये सब इसके बेस वैल्यू। क्या फॉर्मूला है? CnH2n + 1 into x. Here when you are going to take one carbon atom, अब बेटा यहाँ पे आइए और कार्बन की एक वैल्यू लीजिए। इफ n = 1। चलो हम लोग फॉर्मूला बनाने चलते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या होगा हमारा फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होगा? C1 1 का मतलब लिखो या ना लिखो, H 2 × 1 2 + 1 3, CH3। इनमें से हम कोई भी हेलोजन के डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया Cl। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा क्लोरोमीथेन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसका नोमेनक्लेचर नेम क्या होता है? हेलो एल्केन। हेलो की जगह मैंने क्या लगाया? हेलो कौन सा हेलोजन है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने ही दे दिया अभी तुरंत। आप अगर स्मार्ट हो गए तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हेलो मैंने लगाया, जो कि हमने क्लोरो लिया था, और हमने मीथेन ग्रुप का है। एल्केन में भी किस ग्रुप का है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 कार्बन है, इसलिए वो कौन सा ग्रुप है? मीथेन। क्लियर? So this is just the formula for this one. I'll write 2-3 more for this one. If you have 2 carbon atom, then it is going to form C2H5Cl. If n = 2, then it will form C2H5Cl, and your name is what? Chloroethane. Because for 2 carbon atoms we are using ethane. Please note it down, children. Now next group which we are going to study, and that will be your alcohol group. In that group we are going to learn their formulas. Alcohol. Okay, so I'll erase one by one. I hope you note it down already. Shall I erase this? Okay, so note down for next one. First I will write your group name is what? Alcohol. Now I'm asking, I'm giving you time during when I'm erasing this one. आप मुझे बताएं कि अल्कोहल जब आप लिखते हैं तो वो उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है? चलिए मान लेती हूँ कि आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो आप मुझे उसका नोमेनक्लेचर बता दीजिए। अगर आप मेरी पीछे की वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैं कम से कम 3 से 4 बार इस चीज को हर वीडियो में डिस्कस करी हूँ। जहां जहां भी मैंने फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ाया है, मैंने हर एक कंपाउंड्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बताया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्या होगा? आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, क्या है? अल्कोहल। ऑल। व्हाट इज लास्ट नेम? ऑल। ठीक है। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस वन? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक ग्रुप यहाँ पे CnH2n + 1 × x। जब हमने x वाला पढ़े थे तो वो हमारा कौन सा ग्रुप था? हेलोजन। जब हम लोग सेम CnH2n + 1, यहाँ तक फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसके आगे ये OH लग गया। OH लगेगा तो कौन सा ग्रुप होगा? ये हमारा अल्कोहल ग्रुप होगा।
X लगेगा तो कौन सा ग्रुप होगा, वो हमारा हैलोजन ग्रुप होगा। उसी तरह आगे आप एल्डिहाइड के लिए अलग पढ़ेंगे, कीटोन के लिए अलग पढ़ेंगे, ठीक है। CnH2n+1 एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, चलिए यहां से लिखते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। याद हो गया। अब हम लोग यहाँ n की वैल्यू 1 लेते हैं, ध्यान से। n यहाँ पे 1 रखो तो कितना आएगा, C1H2 इंटू 1, 1 + 1, 2 + 1 3, CH3OH। बच्चों आप कहेंगे ये कौन सा कंपाउंड है CH3OH, तो आपने पढ़ा था सबसे पहले एल्केन में CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो आप मुझे अभी बताइए कि CH3 को क्या बोलेंगे। मीथेन का अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो वो क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि वो किसका डेरिवेटिव है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ मैंने एक और ग्रुप बताया था, उसका नाम था एल्किल ग्रुप। आप उससे रिजेम्बलेंस करके मुझे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर या इसका वो मुझे नाम बताइए, इसका CH3OH का नाम क्या है। हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला ग्रुप है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, और इसको कैसे लिखते हैं, अल। बहुत ज्यादा इनके बीच में सिमिलरिटी है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक को ऑल बोलते हैं एल्कोहल और एक को बोलते हैं अल। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। सो एल्कोहल ग्रुप इज व्हाट, द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस वन इज CnH2n+1। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO। अगर ये चीज आपको नहीं पता है बच्चों, तो आप मेरी पिछले वीडियो में मैंने उसको चार्ट के फॉर्म में अच्छे से समझाया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने आप उसको उस छोटे से चार्ट को आप कहीं नोट कर लीजिएगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और आप उसको बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी फंक्शनल ग्रुप को याद करने में, ठीक है। यहाँ पे चलो, n की वैल्यू अगर 1 ले रहे, n की वैल्यू कितना ले रहे 1, तो यहाँ क्या बनेगा, आपने इसको बताया नहीं अभी तक, इट इज योर मिथेनॉल। इट इज योर व्हाट, मिथेनॉल, METHANOL, मिथेनॉल। अंडरस्टूड, हियर n = 1। सेम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो भी मैंने आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया है, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करना है आपको, जनरल फॉर्मूला। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती है जहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूला एक साथ नहीं देता, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सारे जनरल फॉर्मूलाज जो कि क्लास 10 पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप खुद बना सकते हैं। C1H2 इंटू 1 3, CH3CHO, बहुत आसान है। CH3 था तो हमने मीथेन लिखा था, और OH ग्रुप था तो ऑल लिखा था। यहाँ CHO लग गया, और CHO के लिए हमारा ग्रुप कौन सा है, अल। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, मिथेनल। देखो कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक का डिफरेंस है। और हर साल हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों में लगातार गलतियां होती हैं, वो एल्कोहल को एल्कोहल लिख देते हैं अल, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, और एल्डिहाइड को ऑल लिख देते हैं, और वहां पे आप एक भी मार्क्स नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पूरे पूरे फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर दिया। ऊपर लिखा है OH, आपने लिखा एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया। तो इस चीज पे जनरली आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं दोनों को अलग अलग कलर से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ ताकि आप उसको नोटिस करें जब भी लिखें, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर यू इज योर कीटोन। कीटोन, कीटोन यहां पे हम लोग यूज करेंगे ओन, एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज CnH2n, थोड़ा सा ये अलग हो गया CO। कौन सा ग्रुप होता है कीटोन, कीटोन के पास कार्बन और ऑक्सीजन ही होता है। इस ग्रुप में आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लिख लीजिए। यहां पे
पे हम अगर ले रहे हैं CH3 CO CH3, ये भी एक कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं होता। और आपको हमेशा ध्यान देना है एल्कोहल और एल्डिहाइड ये तो किनारे पे लग जाते हैं, लेकिन कीटोन कभी भी, कीटोन का ये प्रॉपर्टी है, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी किनारे लग ही नहीं सकता। इसके एक किनारे और आगे इस किनारे और इस किनारे हमेशा कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होना मैंडेटरी है। ये हमेशा, इसका ऐसा नेचर होता है कीटोन का कि वो हमेशा बीच में ही जुड़ता है। ये एल्डिहाइड और अल्कोहल की तरह किनारे लग के अपने आप को साइड नहीं कर लेता कि मैं बहुत स्पेशल फंक्शनल ग्रुप हूँ, नहीं। इसकी एक टेंडेंसी है, क्योंकि आपको पता है इसकी टेंडेंसी किस कारण की वजह से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। और हाइड्रोजन ना होने की वजह से क्या करेगा, ये अपने आप को सेफर जोन में रखेगा। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे, कार्बन, यहाँ पे कार्बन पे ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड दे दी, एक साइड यहाँ पे आपने क्या दिया H3C, उसको अपोजिट लिखते हैं, दैट विल बी योर H3C, एंड इस साइड आपने क्या दिया CH3। आपको पता है कि एक कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं उनके आउटर मोस्ट में, तो 1 2 3 4। इसके अगर इसके पास हाइड्रोजन होता तब तो कार्बन 5 शेयर करता। और जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया कि कार्बन के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन एटम से ही शेयर करेगा, CH3CO। तो यहाँ पे हमारे कितने कार्बन एटम है, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4। इस यही रीजन है कि कीटोन कभी भी किनारों पे नहीं लगता है। आप हमेशा नोटिस करना कि कीटोन हमेशा 2 एल्किल ग्रुप के बीच में लगाया जाएगा, इसलिए इसका नेमिंग भी अलग होगा। 1 2 3 कितने कार्बन हो गए इसमें, 4, 3 कार्बन होंगे, उसको क्या बोलेंगे, एथ मेथ प्रोप। ये पहली जगह हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई। अगर आप इधर से भी गिनेंगे तो ये सेकंड प्लेस पे है क्या, फंक्शनल ग्रुप, और इधर से भी काउंट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप सेकंड प्लेस पे। ठीक है, तो आप इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, कैन यू गेस, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को आता होगा। इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा 2 प्रोपेनॉन। मैंने आपको अभी बताया कि इसके लास्ट में क्या लगता है, ओन, कीटोन लास्ट में क्या लगता है, ओन, इसलिए उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2 प्रोपेनॉन। अच्छा, 2 प्रोपेनॉन, आप इसको फिर से लिख लीजिए, CnH2n+2। ठीक है, okay children, please note it down. And we are moving with the last one, and that will be your carboxylic acid. Here we are going to start, so please note it down as quick as possible. And last we are dealing with carboxylic acid. I am erasing this first point only, to rest of all you can go with that example. Clear? So let's write the last point here, last carboxylic group, and that will be your which one? Carboxylic. सबसे वीक एसिड होता है, जो नॉर्मली आप इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल OH, जिसको हम लोग हिंदी में विनेगर, इंग्लिश में विनेगर और हिंदी में सिरका जिसको बोलते हैं, एसिडिक एसिड का ग्रुप इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बनाया जाता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूलाज क्या होता है हम एक बार देखेंगे। इसका जनरल फॉर्मूलाज होता है CnH2n+1। आप यहां फिर से इसका एक बार जनरल फॉर्मूला देखिए, COOH। बेटा यहाँ पे आपको 3 चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है, वो क्या क्या है। एल्डिहाइड में भी +1 था, 2n+1। एल्कोहल में भी 2n+1 था, कार्बोक्सिलिक में भी 2n+1 है। तो किसमें किसमें 2n+1 है, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, एल्डिहाइड। सिर्फ और सिर्फ एक जगह हाइड्रोजन के साथ 2 लग रहा है, और वो कौन सा ग्रुप है, वो हमारा कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो आप यहां से इसको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। CnH2n+1 COOH, please note it down. And the last example for this is, if you are going to take the value of n equal to 1 or n equal to
2। चलो 1 ही लेते हैं, n इक्वल टू 1, n 1 हो गया तो यहाँ क्या हो गया C, 2 + 1 3 CH3। और ग्रुप के किनारे क्या लगेगा, आपने यहाँ पे ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे भी COH जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक कहाँ लग रहा है, किनारे लग रहा है। एल्डिहाइड में भी कहाँ लगा था, किनारे। इससे पहले जो मैंने अभी मिटाया अल्कोहल, अल्कोहल में कहाँ लगा है, किनारे, C2H5OH एथेनॉल। लेकिन कीटोन में कहाँ लगा है, बीच में, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये रीजन है। बाकी इन तीनों में क्या है, COH इसमें भी है, CHO इसमें भी है, और उस वाले में क्या है, OH, और उससे पहले कार्बन ऑलरेडी लगा रहता है। इसका नेमिंग क्या होगा, ठीक, ये हमारा क्या है, मिथेनोइक एसिड, और यू कैन राइट या मिथेनोइक। What is the IPAC name of this one? As an example, you are going to write methanoic acid. Please note it down. It is also called your acetic acid, but in general, it will be called it as your. Sorry, here we are having 2 carbon. No, it will be here 1 carbon and 1 carbon. It will be your ethanoic acid. Clear, no? मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, क्योंकि उसमें एक कार्बन की जरूरत होती है। मेथ में कितने कार्बन की जरूरत है, मेथ में एक कार्बन की जरूरत है। HCOOH का जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आई होप इट इज विजिबल। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट फॉर दिस वन HCOOH, दिस विल बी योर मिथेनोइक। मीथेन में एक फॉर्मूला होता है, इसलिए एक कार्बन होता है, इसलिए एक ही है इसमें, यहाँ 2 है, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। क्लियर चिल्ड्रन? सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नोमेनक्लेचर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, नोमेनक्लेचर तो डिस्कस किया ही, साथ साथ हमने उसकी होमोलोगस सीरीज के साथ स्ट्रक्चर्स, नोमेनक्लेचर, जनरल फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए करिए देखिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हम आपके क्लास 10th केमिस्ट्री के शॉर्टकट मेथड से दे सके, आप उसका नोटिफिकेशन अपने चैनल पे या फिर आप अपना नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करने जा रही हूँ। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।